Chapter number 2, Securitization and Reconstruction, SARFAESI Act 2002. Question number RST Limited is a securitization and reconstruction company under SARFAESI Act 2002. The certificate of registration granted to it was cancelled. State the authority which can cancel the registration and the right of RST Limited against such cancellation. अथॉरिटी बताओ जो कैंसिल कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उसके राइट्स आरएसटी के राइट अगेंस्ट सच कैंसिलेशन. Cancellation of certificate of registration under SARFAESI Act 2002. Security asset reconstruction. Securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest Act 2002. Cancellation of certificate of registration under SARFAESI. The Reserve Bank of India may cancel the certificate of registration. कौन कैंसिल करेगा? यहाँ पे आरबीआई खुद ही आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे. हट, कोई बैंक वैंक छोटी वोटी दूसरी कुछ नहीं भैया, आरबीआई सीधे. The Reserve Bank of India may cancel a certificate of registration granted to a securitization and reconstruction company for the reasons stated in Section 4 of SARFAESI Act 2002. RST Limited can prefer an appeal. RST Limited अपील कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको करेगी? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपील कर सकती है within a period of 30 days from the date on which order of cancellation was communicated to it. जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कम्युनिकेट हुआ उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हो. सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया within a period of 30 days from the date on which order of cancellation was communicated to it. The central government must also give such company a reasonable opportunity of being heard before rejecting the appeal. The central government reasonable opportunity of being heard देगी उस कंपनी को before rejecting the appeal. If RST Limited is holding investments of qualified institutional buyers at the time of cancellation of certificate of registration, it shall be deemed to be a securitization and reconstruction company until it repays the entire investment held by it, together with interest if any, within such period as may be specified by the Reserve Bank. जब तक वो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है कुछ भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तब तक के लिए उसको डीम करेंगे, सिर्फ उस काम के लिए सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मानेंगे जब तक वो उनका पैसा वापस नहीं कर देता अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई. आरबीआई टाइम पीरियड बता देगा कि आप इतने टाइम के अंदर ये सिक्योरिटीज़ जो आपके पास हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, उनको बेचो, उनका पेमेंट करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तब तक के लिए आपको डीम किया जाएगा कि आप सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो. उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. Referring to the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, state the circumstances under which the Reserve Bank of India may cancel the certificate of registration granted to a securitization company. Isn't it the same as first one? State the circumstances under which the Reserve Bank of India. अच्छा, इसमें circumstances बताने हैं, ऊपर rights बताने थे RST Limited के क्या right थे, और नीचे अब ये बताना है कि किन सर्कमस्टांसेस में कैंसिल हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का. तो कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. एज पर सेक्शन 4 as per section 4 of securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002, the Reserve Bank may cancel a certificate of registration granted to a securitization company or a reconstruction company if such company ceases to carry on the business of securitization or asset reconstruction, or ceases to receive or hold any investment from a qualified institutional buyer, or
has failed to comply with any conditions subject to which the certificate of registration has been granted to it. Has failed to comply with any condition subject to which the certificate of registration has been granted to it, or at any time fails to fulfill any of the conditions referred to in clause A to G of section 3 subsection 3, or fails to comply with any direction issued by Reserve Bank under the provisions of this act, or fails to maintain accounts in accordance with the requirements of any law or any direction or order issued by Reserve Bank under the provisions of this act, or fails to submit or offer for inspection of its books of accounts or other relevant documents when so demanded by the Reserve Bank, or obtain prior approval of the Reserve Bank required under section 3 subsection 6, fails to obtain prior approval of the Reserve Bank required under section 3 subsection 6. तो इन केसेस में आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपका बिजनेस क्या है, सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, आप वो काम करना बंद करके कुछ और काम करने लगो। दूसरा केस क्या है कि आप रिसीव करना और होल्ड करना कोई भी इन्वेस्टमेंट हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, वो बंद कर दिया आपने कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का आप कोई इन्वेस्टमेंट ही होल्ड नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्टमेंट ही आप रिसीव ही नहीं कर रहे, तो भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू इट। जिस कंडीशंस के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट अलॉट हुआ था वो कंडीशंस आप फुलफिल करना आपने बंद कर दी अभी, तो भी आपका रजिस्टर सर्टिफिकेट गया। एट एनी टाइम फेल्स टू फुलफिल any of the conditions referred in clause A to G of section 3 subsection 3, section 3 subsection 3 of ये securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002 में section 3 subsection 3 में A से लेके G तक के जो भी clauses में conditions दी हुई हैं, अगर वो fulfill नहीं करी आपने at any time during the year, any time, कभी भी अगर फेल हुए उन क्लॉजेस की कंडीशंस को फुलफिल करने में, गया सर्टिफिकेट। या फिर जनरल प्रोविजंस में डला हुआ है कि फेल हो जाता है, आपने आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये काम करो, नहीं किया आपने, अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, और जो भी डायरेक्शन दिया था रिजर्व बैंक ने इस एक्ट के अंदर वो फुलफिल नहीं किया, ठीक है। रिजर्व बैंक ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए थे, नहीं दिए, और रिजर्व बैंक से प्रायर अप्रूवल लेना था आपको अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 के प्रोविजंस के लिए, जो भी मटेरियल्स उसमें हैं वो नहीं लिया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अपेक्स लिमिटेड फेल्ड टू रीपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंकर्स एस बैंक लिमिटेड which is holding a charge on all the assets of the company. The bank took over management of the company in accordance with the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 by appointing 4 persons as directors. The company is managed by Managing Director Mr. X. Referring to the provisions of the said act, examine whether Mr. X is entitled to compensation for loss of office and also explain the effect of such takeover on certain rights of the shareholders of the company. अपेक्स लिमिटेड ने लोन लिया था एक बैंकर से, एस बैंक लिमिटेड से, उसको पैसा वापस नहीं कर पाया, विच इज होल्डिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी। जो एस बैंक लिमिटेड है उसने चार्ज कर रखे थे सारे असेट्स कंपनी के, बैंक ने मैनेजमेंट टुक ओवर कर लिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ये सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन सरफाइसी। उसने 4 लोग अपॉइंट किए डायरेक्टर बना के बैंक ने अपने मैनेजमेंट में ऑफ कंपनी। द कंपनी इज मैनेज बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था मिस्टर एक्स, उसने बोला कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने मेरे को निकाला है, तो आई एम एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो मुझे पैसा दो क्योंकि मेरे को भगा दिया यहाँ से एमडी को। तो आंसर देता है अपेक्स लिमिटेड फेल्ड टू रीपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंकर्स एस बैंक लिमिटेड विच इज होल्डिंग अ चार्ज ऑन ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी। The bank took over management of the company in accordance with the provisions of SARFAESI 2002 by appointing 4 persons as directors.
द कंपनी इज मैनेज बाय मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एक्स, पूरा केस लिख दिया है यहाँ पे। हेयर अपेक्स लिमिटेड इज अ बोरोअर एंड एस लिमिटेड इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। एस लिमिटेड बैंक है, एस बैंक। कॉम्पनसेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एक्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 of the Securitization, Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002, irrespective of anything contained in any contract or in any other law for the time being enforced, no managing director or any other director or a manager or any person in charge of management of the business of the borrower shall be entitled to any compensation for the loss of office or for the premature termination under this act. However, any such managing director or any other director or manager or any such person in charge of management has the right to recover from the business of the borrower money recoverable otherwise than by way of such compensation. Effect of takeover on rights of the shareholders, where the management of the business of a borrower, being a company, as defined in the Companies Act, is taken over by the secured creditor, then, notwithstanding anything contained, such borrower in the said act or in the memorandum or articles of association of such company, it shall not be lawful for the shareholders of such company or any other person to nominate or appoint any person to be a director of the company. No resolution passed at any meeting of the shareholders of such company shall be given effect to unless approved by the secured creditor. No proceeding for the winding up of such company or for appointment of a receiver in respect thereof shall lie in any court except with the consent of the secured creditor. The secured creditor is under an obligation to restore the management of the business of the borrower on realization of his debt in full in case of takeover of the management of the business of a borrower by such secured creditor, provided that if any secured creditor jointly with other secured creditors or any asset reconstruction company or financial institution or any other assignee has converted part of its debt into shares of a borrower company and thereby acquired controlling interest in the borrower company, such secured creditor shall not be liable to restore the management of the business to such borrower. ये क्या था, पूरा केस समझा दिया कि लोन लिया था, लोन वापस नहीं किया है, असेट्स पे चार्ज था, उसने अपना बैंक का मैनेजमेंट को ओवर कर लिया, अपने 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए और जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कॉम्पनसेशन मांग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कुछ भी नहीं देंगे भाई, कुछ कोई किसी भी लॉ में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, कोई भी हो, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर कोई दूसरा डायरेक्टर हो या कोई मैनेजर हो या कोई पर्सन हो इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट जो बिजनेस का था, बोरोअर के बिजनेस के मैनेजमेंट का कोई भी इंचार्ज हो, डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा फॉर लॉस ऑफ ऑफिस फॉर द प्री मेच्योर टर्मिनेशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से तो नहीं मिलने वाला, सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट एक्ट के हिसाब से, ठीक है। हाउएवर, बट any such managing director or any other director or manager or any such person in charge of management has a right to recover from the business of the borrower money recoverable otherwise than by way of such compensation। जो बिजनेस है, बिजनेस से रिकवर कर सकता है वो, ये जो बैंक है इससे नहीं रिकवर कर सकता, बिजनेस से रिकवर कर सकता है क्योंकि उस पर तो कंपनीज एक्ट लगेगा, तो वहाँ पे उसके पास राइट है। अदरवाइज इस एक्ट में तो मना कर दिया जाएगा कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, चलो नहीं। देन इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑन राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स, टेक ओवर होने के बाद जो शेयर होल्डर्स बचेंगे उनके राइट्स क्या रहेंगे। वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ बोरोअर बीइंग अ कंपनी इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट इज टेकन ओवर बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया कंपनी को। देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड such borrower in the said act or in the memorandum or articles of association of company, it shall not be lawful for the shareholders of such company or any other person to nominate or appoint any person to be a director of the company। जो भी शेयर होल्डर्स थे अब उनके पास लॉफुल राइट नहीं बचा कि वो
अपना डायरेक्टर या फिर किसी और बंदे को अपॉइंट करें अपने राइट्स के लिए। नो रेजोल्यूशन पास्ड एट एनी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी शैल बी गिवन इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। और शेयर होल्डर्स की कोई भी मीटिंग हो जाए उसमें कुछ भी अगर वो पास कर दें, अनलेस एंड अनटिल सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी रेजोल्यूशन को। नो प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ सच कंपनी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ शैल लाई इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अनलेस सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल दे, आप रिसीवर भी अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही आप वाइंडिंग अप कर सकते हो कंपनी का, कोर्ट के पास जाके भी नहीं बोल सकते आप, सिक्योर्ड क्रेडिटर का परमिशन चाहिए। द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर ऑन रियलाइजेशन ऑफ हिज डेट इन फुल। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भैया आपका पैसा अगर मिल गया, पूरा पैसा आपने निकाल लिया अपना, तो जो मैनेजमेंट था पहले बिजनेस का उसको रिस्टोर करो, उनको वापस दो उनका बिजनेस। इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ बोरोअर बाय सच सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर आपने टेक ओवर कर लिया था, अगर आपका पैसा मिल गया है तो अब आप जा सकते हैं। Provided that if any secured creditor jointly with or other secured creditors or any asset reconstruction company or financial institution or any other assignee has converted part of its debts into shares of a borrower company and thereby acquired controlling interest in the borrower company, such secured creditor shall not be liable to restore the management of the business to such borrower। अगर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था उसने जॉइंटली अलॉन्ग विद अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर कोई दूसरी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर असाइनी, उन लोगों ने अपना पार्ट कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम डेट टू इक्विटी, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब डेट टू इक्विटी कन्वर्ट कर लिया और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया उस कंपनी में, तो उस केस में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं फिर उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है मैनेजमेंट टू द बोरोअर, फिर बिजनेस रख सकते हैं। डेट से इक्विटी हो जाना चाहिए बट, तो बिजनेस ले लो आप। Now, next question is question number 4. A nationalized bank had provided a term loan of 20 crores to All Well Pharma Limited at an interest rate of 12% and principal amount is payable in equal half yearly installments of 2 crore rupees in 5 years from the date of disbursement of loan. The loan is fully secured against the plant and machinery of the company. The company was regular in paying 3 half yearly installments along with the interest during the first 2 years. Due to recession in the market and increased competition from multinational companies, the price of the goods manufactured by the company had fallen down, and consequently, the company has to close down the plant. Hence, the company failed to pay the fourth installment, but it paid the interest amount as and when due. After a period of 2 months, 60 days from the date of the fourth installment, the bank decided to sell the loan to an asset reconstruction company. It has also decided to sell a loan of 50 lakh rupees given to a farmer which is secured against the agriculture land. The manager seeks your advice on the above proposal in light of the provisions of SARFAESI Act 2002। ये असेट वाला तो ठीक था, ये फार्मर वाला क्या पॉइंट डाल दिया भाई इन्होंने क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो डाल दिए। Answer number 4. The term loan sanction was rupees 20 crores and the present balance is 14 crores. Since 3 installments of 2 crores are paid, मतलब 6 करोड़ वापस दे दिए थे, this is more than 20% of total principal and interest amount as per section 31J। जो टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट था उसका 20% पे हो चुका है। देयरफॉर द लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट and the bank has security interest over the property as defined in the act. As per the provisions of the act, for enforcement of security, there has to be dealt as defined under section 2, subsection 1, clause J, which requires the loan to be classified as a non-performing asset. In the present case, the debts are overdue by 2 months only, which is less than 90 days. Therefore, it is not yet classified as NPA, unlike the other loan given to a farmer as agricultural loan.
Hence, the loan given to Allwell Pharma Limited cannot be sold to an asset reconstruction company. Further, the loan given to a farmer being secured against agricultural land cannot be sold as per the provisions of SARFAESI Act are not applicable to such asset as per section 31J. तो इसमें ये बोला कि जो लोन सैंक्शन हुआ था 20 करोड़ का, उसमें से 6 करोड़ दे दिए, 14 करोड़ बचे हैं, जो कि 20% था टोटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट का। ठीक है, तो जो असेट है, जो लोन की एसेट है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड द बैंक हैज सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी। बैंक के पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि भैया पैसा नहीं दिया तो एसेट को ले सकता है बैंक। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी देयर हैज़ टू बी अ डिफ़ॉल्ट होना चाहिए जब आप एनफोर्समेंट करना चाहो सिक्योरिटी का कि भैया पैसा वापस नहीं दे रहा है, डिफ़ॉल्ट किया है इन्होंने एज पर सेक्शन 21J। तो उस केस में आप सिक्योरिटी पे एनफोर्स कर सकते हो अपना राइट, विच रिक्वायर्स द लोन टू बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि असेट जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगी, तब आप कर सकते हो। द डेट्स आर ओवर ड्यू फॉर 2 months ओनली, बट अभी जो डेट है वो 60 days ही ड्यू हुआ है, दैट इज 2 months, विच इज़ लेस देन 90 days। और किसी भी लोन को एनपीए होने के लिए 90 days के लिए ड्यू होना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट, देयरफॉर इट इज़ नॉट येट क्लासिफाइड एज एनपीए अनलाइक द अदर लोन गिवन टू अ फार्मर एज एग्रीकल्चरल लोन। So this is not an NPA. So this loan cannot be sold to asset reconstruction company unless and until it is an NPA in the books of the lender. और जो एग्रीकल्चरल लैंड वाला लोन था वो सोल्ड ही नहीं हो सकता एज पर SARFAESI के प्रोविजंस, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं होते उस पर दूसरे प्रोविजंस लगेंगे, दूसरा एक्ट लगेगा, उस पर ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। हर चीज़ हर कहीं घुसा देते हैं। Question number 5. Messrs AWP Limited defaulted in repayment of a term loan taken from a nationalized bank against the security created as first charge on its land and buildings. The bank classified the debt from Messrs AWP Limited as non-performing asset. The bank issued notice pursuant to Section 13 of the SARFAESI Act 2002 to the company to discharge its liabilities in full within a period of 60 days from the date of notice. The company objected for full settlement and the time limit for settlement. The bank did not respond to the objection of the company. In light of the provisions of SARFAESI Act 2002, decide whether the objection of the company is valid, whether the bank has to respond to the objection of the company, whether the bank has a right to enforce the security interest without the intervention of the court. इसमें क्या बोला, AWP लिमिटेड था, एक टर्म लोन लिया उसने नेशनलाइज्ड बैंक से सिक्योरिटी के अगेंस्ट, लैंड और बिल्डिंग सिक्योरिटाइज की। बैंक ने क्या किया कि जो AWP लिमिटेड का लोन था उसको NPA करार कर दिया कि ये NPA हो गया है। तो बैंक ने नोटिस इशू किया सेक्शन 13 SARFAESI एक्ट के हिसाब से कि आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें आप 60 days के अंदर फुल रीपेमेंट करिए। द बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी थी उसने ऑब्जेक्शन किया कि फुल सेटलमेंट कर देंगे, बट टाइम लिमिट जो है सेटलमेंट का कुछ मांगा होगा जो कि द बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी इन लाइट ऑफ द प्रोविजन। बैंक ने फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्शन दिया कंपनी ने वो वैलिड है क्या, वेदर द बैंक हैज़ टू रिस्पॉन्ड द ऑब्जेक्शन टू द कंपनी, बैंक को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्ट इज वेदर द बैंक हैज़ राइट टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बैंक के पास राइट है सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करने का विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। Answer to this fifth is, as per section 13 subsection 2 of the SARFAESI Act 2002, where any borrower who is under a liability to a secured creditor under a security agreement makes any default in repayment of secured debt or any installment thereof, and his account in respect of such debt is classified by the secured creditor as a non-performing asset, then the secured creditor may require the borrower by notice in writing to discharge in full his liabilities to the secured creditor within 60 days from the date of notice, failing which the secured creditor shall be entitled to exercise all or any of the rights under subsection 4 of section 13
सो एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द सर्फाइसी एक्ट, जहाँ पे बोरोअर ने वो इज़ अंडर अ लाइबिलिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेक्स एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट और एनी इंस्टॉलमेंट, पैसा नहीं दिया या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ऑन अकाउंट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट इज क्लासिफाइड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय नोटिस इन राइटिंग, कि डिस्चार्ज कर दो लाइबिलिटीज 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, फेलिंग विच द सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी एंटाइटल्ड, अगर नहीं किया 60 दिन के अंदर तो आपकी जो एसेट्स थी वो या फिर जो हमारे राइट्स थे वो हम एक्सरसाइज कर लेंगे। इन द इंस्टेंट केस ने नोटिस इशू किया डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस एंड द कंपनी ऑब्जेक्टेड फॉर फुल सेटलमेंट एंड द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट, कंपनी ने बोला, कंपनी ने ऑब्जेक्ट किया कि फुल सेटलमेंट और टाइम लिमिट के बेसिस पे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 मेंशन्ड अबव, द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी इज नॉट वैलिड, कंपनी कैन नॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि 60 डेज का ही टाइम दिया था और राइटिंग में दिया था और इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया था, तो जो भी प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल हुए, तो कंपनी इज नॉट वैलिड, बैंक इज वैलिड। Second part, if on receipt of the notice under subsection 2 the company makes any representation or raises any objection, the bank shall consider such a representation or objection, and if the bank comes to a conclusion that such a representation or objection is not acceptable or tenable, it shall communicate within 15 days of receipt of such a representation or objection the reason for non-acceptance of the representation or objection of the company। इसमें क्वेश्चन था कि बैंक के पास ऑब्जेक्शन आया बट बैंक ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट ऐसा नहीं कर सकता बैंक, बैंक को 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर उसको कुछ भी ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया है कंपनी ने, बैंक कंसिडर करता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन, एंड इफ द बैंक कम्स टू अ कंक्लूजन, बैंक कंक्लूड करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है या टेनेबल है, टेनेबल नहीं है, सो इट शैल कम्युनिकेट 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन द रीज़न फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रीज़न भी बताना पड़ेगा कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्शन हम, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 3A। Third point is, notwithstanding anything contained in section 69 or section 69A of the Transfer of Property Act 1882, the security interest created in favor of the bank may be enforced without intervention of the court or tribunal। तो बैंक को कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा क्या सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए? तो इसमें लिखा हुआ है कि एज पर टोपा एक्ट, टोपा 1882, अगर सेक्शन 69 और 69A के हिसाब से कुछ भी चल रहा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट था जो कि बैंक के फेवर में क्रिएटेड था, उसको इन्फोर्स कर सकता है बैंक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक्ट के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से अगर आप चल रहे हो, सेक्शन 69A टोपा का लगा रहे हो आप, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपका क्रिएटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल यू कैन प्रोसीड। दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन।